अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वीवर्स। मैं नूरुद्दीन आप सभी को इस चैनल पर आने के लिए और मोटिवेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज मैं एक और टॉपिक के साथ इस क्लास पर हाज़िर हूँ। ये टॉपिक है बेसिक। इसमें एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में कुछ डिटेल के साथ देखने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो पहली बात, तो एटम्स क्या होता है। सो एटम इज़ दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है ऑफ ऑल मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैटर्स that is anything which around us which have mass and it occupy space, that we call it as matter. You take anything, whatever be the thing present in earth, in universe, that is made of atoms, and that thing we call it as matters. तो सारे चीज़ें को मैटर बोलती हैं और मैटर का बेसिक यूनिट एटम्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके, अब what is element? What is an element? Very simple. So an element which is ये purest form of an atom, purest form of an atom. Element is the purest form of an atom. For example, helium है, He2 बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और you take any element. So totally we are having 118 element in a periodic table. Some elements are synthetic, that is man-made, and majority of an element are God-made. Now, what is compound? Now, very interesting question. It is also the purest form of substance. It is the purest form of substance. Let's see. The best example is water. For example, if you take water droplets, you will find millions and millions of this chemical H2O2 or H2O, और वाटर ड्रॉपलेट्स में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर केमिकल रहेगा, तो उसे हमें कंपाउंड बोलते हैं। इट इज़ आल्सो ए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन मैटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ए मॉलिक्यूल. व्हाट इज ए मॉलिक्यूल? ए मॉलिक्यूल is a substance which form more than one atom, which form more than one atom is known as molecule. Say for an example, you take one molecule, best example is water. In water we are having 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen. Say for an example, you take sulfuric acid H2SO4, and if you take HCl, these are all molecules which form with the help of an atom. Different atoms are same atoms. If different atom is there, heteromolecule. Same atoms are there, homomolecule, homonuclear molecule. This is our first point, which is very important to know about atoms, element, compound, molecule. You go to study science. अगर आप जाकर साइंस पढ़ेंगे, साइंस में आपको एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल से रहेगा। तो बेसिक आपको मालूम हो गया। आप क्या कर सकते हैं, आप आकर इजी से आप मार्क स्कोर कर सकते हैं। यस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थिंग इज, अब अगर आप एक टॉपिक ले लें, क्या टॉपिक?
एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, तो इसके ताल्लुक से मैं कुछ और बात डिटेल से बोलूँगा. नाउ इफ़ यू टेक वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट, वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में वाटर, और वाटर का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. If you break the water molecule, you will get two hydrogen and one oxygen. Here if you see three atoms, so two different atoms combined to give one molecule of water, so two hydrogen, one oxygen. Now very important question is, sir, you said what is atom and what is molecule. In atom you will find electrons, protons and neutrons. The atoms are made by this particle, and these particle we call it as subatomic particles. Subatomic particles. अब एटम किससे बने, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से बने. और देन मॉलिक्यूल किससे बने, मॉलिक्यूल आकर एटम के ज़रिए से बने, मॉलिक्यूल आकर एटम के ज़रिए से बने. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ आयन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये वर्ड आकर आपको साइंस में मिलेगा. ये क्या है, सो इट इज़ वेरी सिंपल. आयन्स आर चार्ज स्पीसीज. आयन्स आर चार्ज स्पीसीज. क्या होता है चार्ज स्पीसीज. से फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेक हाइड्रोजन, in hydrogen having only one electron, if you just remove one electron, then it have H plus one electron you are removing. So हाइड्रोजन में है सो एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कर डाले बाई गिविंग सम एनर्जी, ओके, वो एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी. अगर आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो वो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आकर हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा. तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा. ओके, तो अगर उसका पास से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आयन्स बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा. सेम थिंग, जस्ट लाइक इफ़ यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट इट गिव्स प्लस चार्ज, then if you add one electron then it give minus charge. Just like that, if you are having Cl, then you are giving one electron to the Cl, then what will become Cl minus. तो चार्ज आकर प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है. प्लस चार्ज आकर इलेक्ट्रॉन निकालने से आता, माइनस चार्ज आकर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से आता. दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव charge species we called it as an ion. ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीसीज है इसे क्या बोलते हैं, आयन्स बोलते हैं. नाउ पॉजिटिव स्पीसीज आर नोन एज कैटयन, नेगेटिव स्पीसीज आर नोन एज एनायन. कैटयन एनायन, पॉजिटिव कैटयन, नेगेटिव एनायन. एलिमेंट आपको मालूम, कंपाउंड आपको मालूम. नाउ अगर आप वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा. पॉजिटिव चार्ज कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा. और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड का नाम आयोनिक बॉन्ड. वो बॉन्ड का नाम क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या, आयोनिक बॉन्ड रहेगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, these bond are having force of attraction between charges, right, between charges. These attraction we also known as electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction इसको बोलते हैं. Okay, now between atoms having some force of attraction, here if you see the charge attraction, this charge attraction we called it as electrostatic force of attraction. Now very important thing is, एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहता, अगर चार्ज के साथ अट्रैक्शन है वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स बोलेंगे, या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे. ओके, या अगर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन इसे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आकर है, हाइड्रोजन आकर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ऑक्सीजन एटम्स के साथ क्या हो गए, बॉन्ड क्रिएट कर रखे है, तो ये वीक बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड.
अच्छा, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था. देन now if you take any matter, say for an example I am taking water, right? मैं वाटर ले लिया, तो वाटर में क्या है, देखो ये ऑक्सीजन है, ये आकर हाइड्रोजन, ऐसा जाकर फुल ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है कंबाइन होकर एक बड़ा हमारे पास क्या है एक मैटर आकर मिल गया है, राइट? तो इसमें से व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट आई एम टेकिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O. This is H and this is O and this is H. Okay. From this is a molecule. मैटर में से मैं एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाले. Then again from molecule of this water, I am taking only one atom. So this atom is oxygen atom. ये क्या atom है? Oxygen atom है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मैटर से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम होगा. और अब भी हमें डीप अंदर जाएंगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है. वो न्यूक्लियस कौन, एटॉमिक न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं हमें. वो न्यूक्लियस में क्या रहता, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं. और न्यूक्लियस के बाहर क्या रहता, इलेक्ट्रॉन्स रहता, इलेक्ट्रॉन्स रहता. ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कुछ हमें क्या बोलते हैं, सब अटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, सब अटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. ओके. देन अगेन इफ यू टेक प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर क्या है, प्रोटॉन के अंदर क्या है, क्वार्क अप और क्वार्क डाउन करके क्या है, उसके अंदर ही पार्टिकल्स ही और ग्लोऑन करके पार्टिकल्स ही, वो सारे पार्टिकल्स उसके अंदर है. और वो उसमें क्या है, उसके अंदर आपको सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हमें स्ट्रिंग्स बोलते हैं. इसे हमें एक नाम देते हैं क्वार्क करके, क्वार्क करके. ओके. क्वार्क से फिर स्ट्रिंग्स तो जाते रहता. देखो फ्रॉम टाइनिंग स्ट्रिंग से क्वार्क, क्वार्क से प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर अटॉमिक न्यूक्लियस, अटॉमिक न्यूक्लियस मिलकर एटम्स, देन एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर, मैटर से हमने क्या मिलता, एक होल नेचर मिलता, होल अर्थ का क्या है सब्सटेंस मिलते हैं. अर्थ का जो भी चीज़ें नज़र आती हैं वो सारे मैटर्स हैं, राइट? ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज very important is now we understand about atoms, now we understand about molecule, then we understand about ion. So atoms are ये single element, ये क्या होगा, ये single element होगा, ये single element. But very important thing is this will not exist because it have high energy, ये बहुत हाई एनर्जी रहता है इसे. ओके. दिस एनर्जी विल नॉट स्टेबल, will not be stable. Okay, will not be stable. Very important point. Then atoms are not exist, then what will exist, atoms will not exist but molecule will exist and ion will exist. These two are stable element, stable. Okay. Molecules will stable and ion will also stable. Okay. So very important point we saw. Okay. Now very important thing, this is our last content of our class. Now just we saw some basic thing from matter to electrons, protons, then from strings, right? Now we will see the covalent bond and ionic bond. Okay. So we know that, so if you take any molecule, say for an example I am taking hydrogen molecule, right? So if you see हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक लाइन डालेंगे, ये लाइन का नाम है बॉन्ड है, राइट? ये बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है. कहीं को क्यों कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग होकर है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर है, तो क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनगा. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हमारा एक बॉन्ड बनगा. ओके. between these two hydrogen and this hydrogen is a molecule. Okay, one molecule. Now if you see here, if you take Na, Cl, okay, Na having plus and Cl having minus,
Why Na having plus? That is a big question. Why Cl having minus? That is also another big question you will going to see in the next class. But if you see here, this charge also having some force of attraction. These force of attraction we called it as electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. And this electrostatic force of attraction is known as ionic bond. Okay, so if you see here, this ionic bond gives sodium chloride. Okay, so see here, when you see in covalent bond in hydrogen molecule, there also net charge is 0. And if you see here in sodium chloride, the net charge is also 0 if you take covalent bond, or else if you take ionic bond, or else if you take coordinate bond. One more type is there, we will going to see in the next class, maybe in the upcoming class. In that also, in that example also, you will see the net charge will be 0. What is mean by net charge? The charge between the atoms will be cancel out, will be 0. Okay, that molecule is highly stable when compared to the charged molecules. Okay, so with this I conclude my class. So if you are having any doubt in chemistry regarding science or mathematics, okay, or else anything which you want to know, just we are having, we are having to be happy to explain or to clear your doubts. Okay, so we are here, so I'm Nuruddin. We are having one team. We will going to help you whatever you need to know about science, math, okay, English, languages, social science, chemistry, physics, okay, and many more subject. If you want to know, feel free to ask. Okay, comment us. We will going to help you. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum.